at 3 o'clock we will start the session, yes, ma'am. because more We learners will welcome join. Dr. Nidhi Singh, ma'am, at this platform. Thank you, learners. Thank you, ma'am. My screen is visible to all of you. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Let's have the technical checks. Let others join. Before that, we should have all the technical checks. Yes? Yes or no? Dear learners? Yes, ma'am. Yes? Only one yes? How many of you are there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yeah. There should be a spirit. MBA student should have spirit. Because you all are management student. Yes? Yes, ma'am. Yes, correct, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Good. That's good. And this yes should also be a strong yes. So now it's exactly 3. Yes? We should continue our session. Yes, ma'am. Yes? So we Yes, are ma'am. here Continue. for which subject? What is the subject that we are going to head on? All of you know about Business, it? business environment. Yeah, is it easily available on your screen? Are you all comfortable with English or should I use both language? Hindi English combined. Ma'am, both languages. Both language, okay. So आप सब यहाँ पे Both language, ma'am. किस सब्जेक्ट के लिए हैं? Business environment. Yes, visible on your screen. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So what is business? पहले हम थोड़ा सा एक कुछ जान लें इसके बारे में एक दूसरे से, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपना पीपीटी. So what is business and what is environment? As आप लोग MBA कर रहे हो तो MBA student must know, and business and environment both are not too much technical terms. They are a very easy layman terms. Everyone can tell about it. So what is business and what is environment? Can you tell me please? Anyone? Good morning, ma'am. Good afternoon. It's Good noon. afternoon, ma'am. Sorry. Yes. Yes. What is business? Yes, ma'am. What is business and what is environment? I think you volunteered to answer. आपने initiative लिया है कि आप answer करोगे. Yes? No. Okay. I think no one is willing to answer. So let's continue. So these are the topics that we are going to cover in this sessions. Okay. Now, what the introduction? What is business environment? Can you tell me in a layman language और मैं continue करूँ? कोई नहीं बताएगा. Yes or no में तो answer होगा. मैम आप कंटिन्यू करिए. Continue करें. So the term business environment, obviously it is composed of two words, business or environment. Business क्या होता है? Any transaction that is taking place. Yes? Where you Yes, give ma'am. something and you get something. Whether it is tangible or intangible. होता है ना? Tangible, intangible पता है ना everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, so what is no. Tangible चीजें क्या होती है और intangible. Tangible चीजें वो होती हैं जिन्हें हम touch feel कर सकते हैं और intangible क्या जिन्हें हम जिसमें touch नहीं कर सकते टच कर सकते. हाँ जिनका transactions कर सकते हैं और intangible क्या होती है जिन्हें हम feel करते हैं जो service हम Feel लेते करते हैं हैं. that are intangible. Yes. So Invisible business types. environment is composed of two terms, business and environment. In simple terms, the state in which a person remains busy is known as a business. हम ये भी terminology use करते हैं busy without business. Yes. So Yes, ma'am.
Yes, so this is it, Yes, a ma'am. person remains busy is known as business. On the other hand, the word environment refers to the aspects of surrounding. ठीक है, environment क्या होता है? Environment से तो आप सब रूबरू हो. Yes or Yes, no? ma'am. So environment क्या होता है? Our surroundings, Our surrounding, what kind of surrounding? any kind of surrounding. Yeah, any kind of surrounding. So उस surroundings में क्या क्या आता है? Tree. मैं actually Living, non-living, ma'am. being a manager, going to be a manager, मैं वैसे terms चाहती हूँ आप लोगों से कि आप आंसर करो. Our surroundings में क्या क्या चीजें हैं? Ma'am, living or non-living matters. Living or non-living. Yes, ये तो एकदम मतलब this is like class 5th 6th standard answer. Surroundings में क्या क्या चीजें होती हैं? Environments में क्या क्या चीजें होती हैं? There are political, there are legal, there are technological. ये सारे environment होते हैं ना जो फर्क करेंगे किसी भी business को. Yes or no? Yes, The consumer, the internal yes. people in the environment. So a business जहाँ पे हम बिजी होते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, रादर दैट ट्रांजैक्शन में भी टैंजिबल और इनटैंजिबल, और एनवायरनमेंट जो हमारे सराउंडिंग्स में है, वो चाहे किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, मैक्रो, माइक्रो, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम आगे डिस्कस करेंगे. दैट इज एनवायरनमेंट. सो बिजनेस इज an open system which continuously interact with environment. That is, ये business किसी भी environment में ही exist करता है. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. And society and business enterprise are mutually dependent. Yes, both are dependent on each other. Right, ma'am. So, definition of business. What is a business? An organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. किसी भी तरह की एक्टिविटी, वो कॉमर्शियल हो, वो इंडस्ट्रियल हो, प्रोफेशनल हो, ये तीनों एक्टिविटीज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड है. ठीक है. अ बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटी और नॉन प्रॉफिट के लिए भी होता है कि नहीं? Like NGOs. Yeah, non-profit organizations are NGOs. So any commercial, industrial or professional activity undertaken by an individual, group, organization or society, ये सारी चीजें जो terms मैं बता रही हूँ, they all comprises in the business, and it is a reference to a specific area or type of economic activity which may include purchase, sale, manufacture, processing and or marketing of product or services. Product और services में क्या? आपका होटल इंडस्ट्री हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सारी चीजें में हम कुछ किसी को दे नहीं रहे हैं, कुछ दे रहे हैं. आप जाते हो होटल, रुकते हो, स्टे करते हो, तो व्हाट यू डू? यू गेट एन एक्सपीरियंस, यू एंजॉय अ सर्विस. यस, यस और नो? Yes, ma'am. I want Yes, this ma'am. yes should be coming, Yes, ma'am. otherwise मुझे लगेगा कि मेरा connection lost हो गया. Yes, ma'am. Yes. So, for business, profit is often regarded as overall measure of performance. Yes, it is a financial yardstick for measuring business. Overall profit भी measure करते हैं, because अगर हम profit measure नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी overall yearly performance क्या है किसी भी business की, उसकी efficiency, उसका evaluation. Okay. Now, explanation for business. Business includes everything from a small owner-operated company such as family restaurant to a multinational conglomerate such as General Electric. ठीक है. कोई भी public, private या कोई एक छोटा enterprise, that is also a business. एक entrepreneur, the person who is selling, जो हमारे रोड साइड पे कुछ बेचता है, he is also doing a business. Yes, हमने Yes, ये ma'am, देखा yes. है कि हमारा कोई भी बिजनेस हो, इन्वायरमेंट का बेस्ट एग्जांपल बिजनेस पे पता कैसे चला है, दिस पैंडेमिक मैंने बताया है ना कि देयर इज द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. कितने बिजनेसेस ऐसे थे जो कि बैकआउट हो गए, या जो कि बैंकरप्ट हो गए, या जो कि बंद हो गए.
ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन वी हैव मतलब वी जिस सिनेरियो में हम चल रहे हैं वी हैड ग्रेट एग्जांपल हाउ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर. कितने ऐसे लूप होल बिजनेस ऐसे एग्जिस्ट करने लगे, दे इनोवेटेड. जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज है, प्रोडक्ट कैरिंग, स्विगी यूज करते होगे आप सब, स्विगी जीनी भी इवैल्यूएट हुआ, इनोवेट हुआ ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन. यस, आपका प्रोडक्ट आपका सामान घर से उठा के कहीं और पहुंचा रहा है. दिस टाइप ऑफ इनोवेशन. और ये इनोवेशंस क्यों हुए? बिकॉज ड्यू टू द एनवायरनमेंट, द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड आवर बिजनेस. So business is created and managed by people who make decision for growth of business. Peter Drucker ने ये बात कही है कि it is created and managed by people who make decision for growth of business. Profit is not the sole objective of business. जबकि एक mindset है कि profit is only the sole objective for any business. Rather, it includes development of wealth, goodwill, societal factors and relations. सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? Right, ma'am. जी मैम. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Good. So, what is the objective of business? First objective is profitability, productive efficiency, growth, technological dynamism, stability, self-reliance, survival. ये सारी चीजें होती हैं. These are the purpose of business is to create customer or market which in turn caters to society. समझ में आया? हम एक मार्केट क्रिएट करते हैं. डायनेमिक, आई विल टेल. ओके, हम एक मार्केट क्रिएट करते हैं, कस्टमर्स और मार्केट विच इन टर्न केटर्स टू. हम अगर सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो हम सोसाइटी को देते हैं. यू हैव एन आप लोग के कभी आपने किसी एग्जाम्पल से रिलेट किया? ही इज हैविंग अ वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी. Right. किया रिलेट? तो डायनेमिक पर्सनालिटी इन योर सेंस क्या होता है? अगर आप किसी को कहते हो कि उसकी पर्सनालिटी बहुत डायनेमिक, कैन यू प्लीज से? बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है. डायनेमिक का मतलब ही इज अ गुड लीडर. उसके बोलने की स्किल बहुत अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, वो दिखता बहुत अच्छा है, वो अपने आप को लोगों के बीच में कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करता है. ही इज हैविंग एवरीथिंग. यही तो होता है ना मतलब डायनेमिक का. Right, ma'am. यस, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक. किसी भी चीज को हम कह रहे हैं वी आर स्टडिंग MBA, बट वी कैन रिलेट एवरीथिंग in management with the real world examples, and that will create your questions, and solve your questions. Yes, anything. So stability you all know. Technological dynamism, according to the technology we have to change. ऐसा नहीं है कि अभी भी हम ट्रेडिशनल चीजों को यूज करें, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म यूज करें फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर रीचिंग टू कस्टमर्स. अगर अभी कोई जो नियर अबाउट आपके घर के आसपास किराना स्टोर होगा, जनरल मर्चेंट शॉप होगी, अगर अभी भी वो कोई भी ऐसा मीडियम नहीं यूज कर रहा है जो इसका टेक्नोलॉजी यूज करके हम पे करें, लाइक जीपे, फोन पे या एनीथिंग, तो क्या आप उसके यहाँ रेगुलर विजिट करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि हर इंसान को अपने साथ चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, एनवायरनमेंट के साथ उसे चेंज करना होता है खुद को. तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल डायनामिज्म. ओके, नाउ बिजनेस इज सोसाइटी ऑर्गन ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड चेंज. सो इसमें क्या क्या चीजें आती है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कस्टमर सर्विस, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी, डाइवर्सिफिकेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर के बिना नहीं चल सकता. Is it a fact or not? Right, ma'am. Yes. Right? अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो दे विल नॉट गिव 100% प्रोडक्टिविटी, और जब 100% प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो अकॉर्डिंगली और बिजनेस विल बी अफेक्टेड. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. कैसे? अपॉर्चुनिटीज क्या होती है और थ्रेट्स क्या होते हैं? माय डियर लर्नर्स, can you tell what are opportunities and what are threats?
अपॉर्चुनिटी, मैंने क्या बोला, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, पैंडेमिक आई, टेक्नोलॉजिकल चेंज हाँ तो हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई एक नया प्लेटफॉर्म मतलब हाँ, शुरू करने एक की। नया प्लेटफॉर्म अवसर यूज मिला। करने का, सरवाइव करने के लिए। और थ्रेट क्या होता है, अगर आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया, द- एक जनरल किराना स्टोर है, सिर्फ कैश पेमेंट लेता है, वो कोई भी नया चेंज को अडॉप्ट करने के लिए नहीं, तो ये उसके मतलब बिजनेस के लिए थ्रेट है। हाँ, तो दिस इज अ थ्रेट, उसके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है और क्या हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स हैं, ठीक है। गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रोथ का डायरेक्शन देता है। अगर हम स्विगी, जेनी या जोमेटो जो भी ये हैं, ये देवर प्रीवियसली किस चीज में थे, ओला था, ओला है, ओला सर्विस है, किस चीज में डील करते थे, जोमेटो वाज डीलिंग ओनली इन डिलीवरिंग फूड आइटम्स, स्विगी वाज डीलिंग सिर्फ फूड आइटम्स डिलीवर करते थे, आप किसी रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करते थे, वहां से पिक करके आपके पास आते थे। ओला केवल ट्रैवल सर्विस में रिलेट करता था, yes or no? यस मैम, सेम हाँ। लाइक ग्रैब आल्सो। Yes, ma'am. yes, but Yes, जब, ma'am. हाँ, जब एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं तो इन लोगों ने अपने को उसी हिसाब से चेंज किया, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, अदरवाइज ओला शुड बी बैंकरप्ट। हाँ, मैम सेम Yes लाइक or ग्रैब no? Yes, आल्सो, ma'am. ग्रैब आल्सो मैम सेम। यस, सो इस तरीके से कंटिन्यूअस लर्निंग, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंटिन्यूअस लर्निंग इज, आपको हमेशा सीखना है। योर कॉम्पिटिटर्स, द प्लेयर्स इन द मार्केट, वो क्या चेंज कर रहे हैं और एग्जैक्टली उनको फॉलो नहीं करना, यू हैव टू इनोवेट। विदाउट इनोवेशन अ बिजनेस कुड नॉट एग्जिस्ट। अगर आप किसी शॉपकीपर या किसी ठेला वाला या किसी रेस्टोरेंट में खाते हो तो उनकी कुछ स्पेशलिटी होती है ना, इनोवेट करते हैं, लर्न करते हैं, उनका कुछ डिफरेंट होता है, जिसलिए वो अपनी मार्केटिंग करते हैं कि दिस यू कांट फाइंड एनीवेयर। देन इमेज बिल्डिंग, आपके माइंड में अपनी एक इमेज बिल्ड करना बिटवीन द कस्टमर, एवरीथिंग, होल बिजनेस एनवायरनमेंट, चाहे हम डायरेक्ट कस्टमर को डील कर रहे हो और चाहे इनडायरेक्ट कस्टमर्स को डील कर रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन इमेज बिल्डिंग। अगर आपका इमेज अच्छा नहीं है कस्टमर के बीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कस्टमर्स क्या होते हैं, एनी आइडिया? Don't fear, just answer. Okay? Any idea what are direct and indirect customers? Am I audible? यस मैम। Yes. So what are direct customers? Yes, ma'am. जो Yes. आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो, आपने मैन्युफैक्चर किया और वो कंज्यूम कर रहे हैं, those are the direct customer. And who are the indirect customers? जो आपका प्रोडक्ट यूज करके then again they are making a product which is going to be consumed by the customers. कोई एग्जाम्पल इसका आप बताओ मुझे, जो हमारी जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, डू ये मैन्युफैक्चर No, ईच एंड ma'am. एवरीथिंग? No, ma'am. मैन्युफैक्चर कर, यस, सो दे असेंबल ना, नहीं मैम। they are the, Yes, ma'am. yeah, they procure products from different manufacturer, they assemble it and then they deliver to the direct customer who is going to use it. Yes, so image Like Hyundai. building, image building is also a great thing. अगर माइंडसेट में कस्टमर के, आप अगर अभी मैं बोलूं कि थिंक ऑफ अ शू ब्रांड, अगर आपको बोलती हूँ कि आप किसी भी शूज का ब्रांड का थॉट करो तो क्या आता है आपके दिमाग में? Adidas, Nike. Adidas, yes, someone say Reebok, क्यों? Why Adidas, why Reebok, why not Campus? Image building. हाँ, image building है, yes. जबकि we are promoting use of Indian products, yes. Right. So image building, the जो easiness, आप shoes के उसमें क्या देखते हो, comfortability तो देखते हो when you wear shoes. Right, ma'am. हाँ, तो जब आप एक फर्स्ट एक्सपीरियंस करोगे, वन टाइम एक्सपीरियंस करोगे, देन यू विल हैव अ इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड माउथ मार्केटिंग, आप फिर अकॉर्डिंगली एक दूसरे को कम्युनिकेट करोगे कि यार यूज दैट प्रोडक्ट, यूज दैट एडिडास शूज, वो बहुत अच्छा है, इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव। सो आपके माइंड में इमेज बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मीटिंग कॉम्पिटिशन, व्हाट डज दिस मीन, मीटिंग कॉम्पिटिशन? इसका एक एग्जाम्पल है
कि जो मैंने बोला आपको कि यूज ऑफ जीपे, जितनी भी ऑटोमेटेड सर्विस है ट्रांजैक्शंस में, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के उनके हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजिकल के चेंज नहीं करेंगे, तो हम क्या होगा, हमारा We'll face the ग्रोथ नहीं competition. होगा, हम वहीं पे स्टेबल हो जाएंगे या हम फिनिश हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे. यस, सो वी हैव टू मीट द कंपटीशन. उसके लिए व्हाट आवर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग एंड व्हाट आवर कस्टमर्स आर डिमांडिंग, बोथ वी हैव टू लुक अप. आइडेंटिफाइंग फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, किसी भी फर्म को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करनी हो कि व्हाट इज. अब हमें कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर करना हो, लाइक हमें एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ऑयल की वो करनी है, ये जो सरसों का तेल या ऐसा कुछ भी जो ये करते हैं ना, पिरोते हैं जिसको, अगर हमें एक छोटा सा इसका वो करना है, तो हम एक इसका यूनिट डालते हैं अपने किसी भी लोकल एरिया में. तो हम जो सरसों है, जो मस्टर्ड सीड है, उसे हम कहाँ से प्रोक्योर करेंगे? फार्मर से. फार्मर्स से. कहाँ के फार्मर्स से? मान लीजिए हमें लखनऊ में डालना है, ठीक है, तो हम कहाँ के फार्मर्स से प्रोक्योर करने जाएंगे उसे? लखनऊ के फार्मर्स या फिर नियर बाई. नियर बाई से ही. क्यों हम दूर के इसके पास नहीं जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन से हमारा हाँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करेंगे ना हम कि हमारी हाँ, हमारे इन्वायरमेंट की, जिस इन्वायरमेंट में हम हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम काम करने जा रहे हैं, वहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ की वीकनेस क्या है, क्या चीजें हमें इजीली अवेलेबल है, क्या चीजों में हमें दिक्कत हो सकती है. यस. यस मैम. सो हाउ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस. ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई ये नहीं है कि प्री डिफाइंड प्रोसेस है कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस को करेगा तो ये इसके प्रोसेस होंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3. It is a natural process. The natural environment has influenced business in a variety of ways. Environmental influence has captured the attention of companies and consumers worldwide on how products and services are delivered, and to work with the natural environment instead of slowly destroying it. मैकडी के बर्गर्स, अगर आप लोगों को आइडिया होगा लर्नर्स, सो ये मतलब जैसे कोका कोला है, कोका कोला इज यूजिंग व्हाट, अ सेम एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड वाइड और नॉट? वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड. इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिमिलर है वर्ल्ड वाइड. यस और नो? यस, हम सेम है, सिमिलर है. यस. बट अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो देयर वाज एन एग्जांपल कि मैकडी ने अपने बर्गर्स में कुछ वेरिएशंस किए हैं साउथ में जब वो दे रहा है तो, और जब वो नॉर्थ में दे रहा है या एरिया वाइज वो उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं. यस. क्यों किया है? क्योंकि मैम उनका सिटी का टेस्ट वैसा, तो वो उसे वैसे ही अडॉप्ट करेंगे. ये अभी मैं बोल दूं कि इन लखनऊ हम यहाँ पे सिंपल लुंगी और शर्ट सेल करना शुरू कर दें, बंद कर दें बाकी जो भी एप्रल्स हम सेल करते हैं, और जो भी तरीके से डेनिम्स और सूट्स और एकदम ट्रेडिशनल वही साउथ सिल्क की साड़ीज और लुंगी एंड शर्ट. सो क्या ये सबको एक्सेप्टेबल होगा? No, ma'am. Because naturally the environment is affecting. जो कल्चर है, जो जहाँ का नेचुरलिटी है, हमको उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को देना होगा. यस. सो बिजनेस दैट इग्नोर और अंडर एस्टिमेट, जो भी इग्नोर करता है या अंडर एस्टिमेट करता है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को, विल इवेंचुअली फेल. दिस इज द फैक्ट. अगर आप अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को नहीं वो करोगे तो आप इवेंचुअली फेल करोगे. तो बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडैप्ट टू सर्वाइव the environmental threats, as well as identify, appraise and respond to various opportunities in the environment. सब कुछ हमारे environment से ही relate करता है, चाहे वो हमारा marketing हो, चाहे हमारा financial हो, सब में environment का effect है. जैसे हम कहते हैं ना कि एक business के सारे aspects होते हैं, जितने भी branches हैं, finance की, accounting की, HR की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या इंफॉर्मेशन सिस्टम की,
all are interrelated and all are being affected by the environment. Yes. So business decisions are influenced by two sets of factors, that are internal factor, the internal environment, and the external factor, the external environment. Business environment present two challenges to the enterprise: the challenges to combat the environment threats and exploit the business opportunities. ये जो तो दो चैलेंज हैं, ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं. So environmental analysis is one of the first step in strategic. किसी भी business को strategically manage किया जाता है, तो it is the first step in strategic management of a business. Now, see, environment equal to external plus internal factor. Now, what are the environmental variables? Internal and external factor. In external factor, they are macro and micro environment, and influence positive or negative between external and internal environment. There is a mutual relationship. So external is beyond control. External environment जो होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है. This is the biggest fact. अगर हमारी पॉलिटिकल, हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमारी पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं, फर्क पड़ता है, yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं मैम. नो मैम. FDI इन्वेस्टमेंट्स पहले कम होते थे, अब FDI इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते हैं. ज्यादा होते हैं. तो ये कौन सा फैक्टर है? पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स. ये किसी के भी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. एक्सटर्नल फैक्टर्स आर beyond the control of the individual or the industrial enterprise. So from industry to industry and country to country, a strategist looks on environment as posing threats to the firm or offering immense opportunities for exploitation. Now, what is this? क्या हम इनपुट करते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या आउटपुट मिलता है, एंड what are the environment and monitoring and control. What we input capital. एक बिजनेस में हम क्या क्या इनपुट कर रहे हैं? कैपिटल, मटेरियल, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, labor, suppliers, knowledge, time. Yes or no? These are the inputs? Yes ma'am. Yes. And what we are transforming? Alteration, transportation, storage, inspection. ये सब होता है? जी मैम. Yes ma'am. होता है. Transformation Yes, system. And the output is facilitating goods or services. Ultimate output किसी भी business का either it is a goods or it is a service. Yes? Yes. Now, what are the environment that affect this input-output process? The customers, the regulations, the suppliers, the economy, the competitors and the technology. ये सारे factors होते हैं जो affect करते हैं. और इन्हीं factors की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के हम करते रहते हैं. यहाँ से हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से डेटा लेते हैं और एक्शन करके वापस देते हैं. मैनेजिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पे. यस, हम मॉनिटर करते हैं, ये चेंजेस आए, ये चीजें कॉम्पिटिटर्स हमारे. लाइक देखो, मार्केट रिसर्च क्या होती है? मार्केट रिसर्च होती क्या है? मार्केट रिसर्च स्टार्ट होती है जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है, और जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है ना, तब भी ये कंटिन्यू होती है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में कुछ आइडिया है? नहीं. नो. ओके. कोई भी प्रोडक्ट जब हम डेवलप कर रहे हैं तो उसके पहले भी हम मार्केट रिसर्च करते हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ोगे. वो सारी चीजें हम करते हैं. उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, हम कॉमर्शियलाइज करते हैं, तब भी रिसर्च करते हैं. रिसर्च करने का सेंस क्या होता है? रिसर्च करने का सेंस ये होता है कि अगर अभी हमें एक सोप मैन्युफैक्चर करना हो, सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, है ना? तो आप भी अगर उन्हीं जैसा कुछ करोगे मैन्युफैक्चर, तो आप फिर क्या, आप में और उनमें क्या डिफरेंस है, या आपकी मार्केट कवरेज कैसे बढ़ेगी? उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, सर्वे करना पड़ेगा मार्केट में. हाँ, मार्केट सर्वे करते हैं. मार्केट सर्वे करने के बाद ही प्रोडक्ट डेवलप करते हैं. तो जब हम मार्केट सर्वे करते हैं तो उसमें हम किसका व्यू देखते हैं? कस्टमर का देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखेंगे. अगर हम सोप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं तो सप्लायर्स भी हमें देखने होंगे कि नहीं देखने होंगे?
जी बिल्कुल। कॉम्पिटिटर्स को भी हम एनालाइज कर ही रहे हैं, रेगुलेशंस क्या क्या है, हमारी इकोनॉमी कैसी है और टेक्नोलॉजी क्या क्या है हमारे पास, कौन सी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी हमारे रीच में है, कौन सी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, लेकिन सब कोई वो चीजें यूज तो नहीं कर पाता है ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। The environment encapsulates different influence and diversity, which makes strategic decision making difficult. Uncertainty due to fast technological change. अब क्या है कि पहले हम केवल एक लोकल लेवल पे मार्केट को डील करते थे या नेशनल लेवल पे, बट अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं ड्यू टू दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। हम ग्लोबल लेवल पे चीजों को डील कर रहे हैं। जब हम ग्लोबल लेवल पे चीजों को डील कर रहे हैं तो it makes understand future external influences on organizations. क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं जिन्हें हमें चेंज करना होगा, हमें कोप अप करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ। एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट जो है, क्या कोई इन्वायरमेंट स्टेबल है? इन्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. इतना ज्यादा अभी Yes, ma'am. rainfall हुआ है। Many of you must be from Lucknow और कुछ बाहर से भी होंगे, बट अभी ये जो रेनफॉल 2-3 डेज हुआ है, तो इससे क्या हुआ है कि मार्केट में अगर आप मतलब जस्ट सर्वे करोगे तो पीपल आर आस्किंग फॉर फुल स्लीव्स क्लोथ्स फॉर देयर किड्स और फॉर द ओल्ड एज पीपल। तो तुरंत ये तो इंस्टेंट चेंज है जो दिख रहा है। सो यू शुड बी रेडी विथ ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस। यस, कितने फार्मर्स हैं जिनका जो क्रॉप है वो सर्वाइव नहीं किया है। यस, एक्सपेक्टेशंस और प्रेजेंट सिचुएशन, तो हमें उसको भी हैंडल करना होगा, हमें एनवायरमेंट चैलेंजेस को भी हैंडल करना होगा। सो एवर चेंजिंग एनवायरमेंट है। कुछ चीजें एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं, जैसे ये रेन थी, ये हमारे हाथ में नहीं थी, ये नहीं प्रेडिक्टेड था कि ये होगी। सो व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस? पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू व्हाट। सो अंडरस्टैंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट, स्टैटिक, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एक्सेट्रा। क्या नेचर है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट का? एक सेटअप करना है, वही मैंने बोला ना कि हमें एक मस्टर्ड ऑयल का प्रोसेसिंग यूनिट्स वो करना है, तो हमें देखना पड़ेगा पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्यों? इकोनॉमिक फैक्टर देखना होगा कि नहीं देखना होगा? यस मैम, देखना होगा मैम। वाई? मैम इसलिए क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को, नई चीज को अगर प्रॉब्लम आई है एनवायरनमेंट में, तो हमारी इकोनॉमी सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी हमें, नहीं या हम करेगी। उतना कुछ भी एक्सपेंस हम कर नया पाएंगे कि नहीं मैन्युफैक्चर मार्केट। कर रहे हैं। सोशियो कल्चर फैक्टर क्या होता है? अभी आप मस्टर्ड मैम, ऑयल का प्रोसेसिंग यूनिट जाके साउथ में खोल दो, वहां पे क्या तो वो उसे कंजम्पशन अडॉप्ट ज्यादा ही नहीं है? करेगा। हाँ, अडॉप्ट ही नहीं करेगा। तो सोशियो कल्चर फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज हमारे पास क्या हाँ, क्या प्रेजेंट है उस चीज को हाँ, आगे अपडेट करने के लिए। yes. So environmental scanning is monitoring, evaluating and disseminating of information from the external and internal environment to keep people with the corporation. A corporation uses this tool to avoid strategic surprise and to ensure its long-term health and sustainability of business. देखो, ये नहीं होता लर्नर्स कि हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग अभी करेंगे, ये एक कांस्टेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमें हमेशा स्कैन करते रहना होगा टू सर्वाइव। यस, सो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स? इंफॉर्मेशन गैदरिंग 2 फेजेस में होगी। एक इंफॉर्मेशन गैदर करना और उस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना, rather it may be verbal and written information, search and scanning, spying और forecasting। सर्च एंड स्कैनिंग क्या है? सर्च करना और स्कैन करना थ्रू कस्टमर्स, थ्रू कॉम्पिटिटर्स, थ्रू रिसर्च। स्पाइंग इज व्हाट? एक तरह से मैम नजर रखना कि जो हम प्रोडक्ट या कुछ भी मार्केट में नया अपडेट कर रहे हैं, तो वो और मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस में है कि नहीं मेंटेन हो रहा है। यस, एंड फोरकास्टिंग?
मैम फोरकास्टिंग मीन्स कि अगर आगे कुछ भी विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ हम कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो वो एज पर द एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट Prediction रहेगा फायदेमंद कि नहीं। यस, फोरकास्ट से करना predict किसी करना। भी चीज का, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है कि देयर विल बी रेन, तो फोरकास्ट क्यों करते हैं हम? कोई भी चीज फोरकास्ट क्यों करते हैं? मैम इसलिए हमें करते हैं कि अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या फिर वो ज्यादा रिस्क बेयरिंग तो नहीं है। ये पहले से स्पेशली प्रेडिक्ट जब करना मैडम, ये तो किसी भी बिजनेस फोरकास्टिंग, तो देखो अब हम एचआर में भी करते हैं फोरकास्टिंग। पहले होता था कि वी यूज टू डू फोरकास्टिंग इन ओनली फाइनेंशियल्स और आवर दिस प्रोडक्शन साइड, बट नाउ एवरीवेयर देयर इज फोरकास्टिंग इन एचआर, एनालिटिक्स, जितने भी बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, एवरीवेयर फोरकास्टिंग इज डन नाउडेज. Everything is on analytics now. So why environmental analysis? Analysis should provide, मैंने अभी तक जितना सब कुछ समझाया है उससे आपको ये पता चल गया होगा कि why we should go for the analysis of the environment. Yes or no? क्योंकि मैम एनालाइज करने से हमें इजीली पता चल जाता है कि हमें वो चीज करनी है नहीं करनी है, आगे फ्यूचर में उससे क्या, अगर हमें Yes. प्रॉफिट है तो ही हम आगे प्रोसीड करें। Yes, good. Concept is clear in all of your minds. Yes. Now, Yes, ma'am. what Yes, are the ma'am. characteristics of business environment? Business environment is complex. Yes or no? Is it complex or not? Yes, ma'am, it is. Yes, it is very much complex because we have to monitor different things. Now, environment is dynamic. Dynamic पता है क्या होता है? तो dynamic है ही, it's changing, constantly changing in shape and structure all time. Environment is multifaceted. Why? मैम बिकॉज इट इज, उसमें बहुत सारे मल्टीटास्किंग है, तो हमें हर तरफ अपडेट रहना है, ध्यान रखना है। Perception of the observer. It depends on the perception of the observer. आज हमारी preference ये है, कल हमारी preference change हो जाएगी. Yes. Preferences Yes, ma'am. are changing on a regular basis. Now environment has far reaching impact. Far reaching impact क्यों है? डोंट नो मैम। Don't know. No, Anyone ma'am. else? Anyone else? No, ma'am. The entire profitability depends on the surrounding environment that the business is Yes. operating in. Yes, and the entire yeah, it depends on the surrounding environment. So we have to, the growth and profitability, we have to monitor the environment, and not only the external, the internal also. Okay, Now, ma'am. what are the types of environment? Internal environment, it comprises of employees, cash flow, capital assets, material, structure. Employee, everyone must be aware of. What is cash flow? The ingoing and outgoing of the Outgoing of cash. Capital assets, capital assets mean which are the fixed assets of the industry or organization. organization, we can say. Yes, material. Material means whatever raw material we are using to make the Yes. finished And product. the structure. What is the structure? Structure, ma'am, we can say that what will be the result after completing by using material made No, it. no, ma'am. It's Structure not. is organizational design like Yeah, hierarchical the structure. organizational design. अगर हम एक बहुत स्किल्ड पर्सन को एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेबर के पे रिक्रूट कर लें और एक लेबर को मैनेजर पे रिक्रूट कर लें, will it go? No, ma'am. No. No, ma'am. No, No. na? So No, we ma'am. have to follow proper structure to look into the for the Organization. growth and opportunities of the organization. So these are the internal environment जिन्हें हमें देखना होता है हर कुछ. अभी हम एक कंक्रीट, जिसे कहते हैं ना ईंट का भट्ठा खोलना हो, तो हम उसे कहाँ खोलेंगे? अगर हमें उसको खोलना हो ईंट का भट्ठा, तो कहाँ खोलेंगे? वहां जहाँ हम अर्थ को निकाल सके, मिट्टी को जहाँ से निकाल सके. कहाँ से निकाल सके? एक तो ये, तो मतलब हमने मटेरियल को देखा सबसे पहले कि हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और क्या देखेंगे? कहाँ पे डिमांड सबसे ज्यादा है? दूर होना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से.
रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए, वेरी गुड। मैम रूरल एरिया में हो रहा है। चीप लेबर हाँ, चीप लेबर, उसका रीजन है रूरल एरिया, है कि नहीं है? राइट मैम। यस मैम। यस। यस मैम है। Yes, तो ma'am. आप देखो, यही से आपको समझ में आ रहा है कि हमने इंटरनल एक एग्जाम्पल से अभी हम सारी चीजों को चेकआउट कर लेंगे। इतना चीज हम इंटरनल प्रोडक्ट, हाँ market for our products. market, you are not audible exactly clearly. ओके, सो हमने ये देखा, ठीक है। अब हम अपने माइक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आते हैं? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? Who are the stakeholders? Those who are directly or indirectly related to the organization. Yes or no? Yes Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Then competitors. Who are our competitors? अगर हमें एक ईंट का भट्टा खोलना है तो कंपटीशन क्या है? हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है? उस एरिया में आसपास जो कि यही बिजनेस कर रहे हो। Yes? उस एरिया में आसपास जो यही बिजनेस कर रहे हो। जो कॉम्पिटिटर्स कौन है हमारे? जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सेम बिजनेस कर रहे हो मैम। जो सेम बिजनेस कर रहे हो, वही तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। Yes, ma'am. तो हमें एनालाइज करना होगा ना उनको भी। फिर सप्लायर, सप्लायर कौन है? जहाँ से मैम हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। हाँ, कुछ भी चीजें जो हमें प्रोक्योर करनी है, हमें सप्लायर्स को भी। अब हम कुछ भी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं और हम अपना रॉ मटेरियल बहुत फार डिस्टेंस से मंगवा रहे हैं, तो विल इट गो? नो मैम, वो ट्रांसपोर्टेशन में सारा क्या लग जाएगा। इंटरमीडियरीज क्या है? मिडलमैन। मिडलमैन, यस। उनको भी हमें मॉनिटर करना होता है, देखना होता है। वो हमारे माइक्रो और कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स सेम होते हैं? नहीं मैम। Commercially, What are customers and who are consumers? Yes? कमर्शियल भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। जैसे एक आदमी अपना घर बनवाने के लिए ले रहा है, कोई कंपनी बनवाने के लिए ले रहा है। Yes. और कोई कॉन्ट्रैक्टर है। Like yeah, contractor is a customer and the person who is And individual is a customer and a group of people are the consumers. Okay? Yes, okay ma'am. Now, what are macro environment? Macro consists of political, environmental, social and technological. These four things are there. Political, कभी भी कुछ भी चेंजेस, गवर्नमेंट के चेंजेस, कोई भी पॉलिसीज में चेंजेस, वो इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। व्हाट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स? द बेस्ट एग्जांपल इज द पैंडेमिक। इट हैज made many changes in the business, many changes in the people. Yes or no? Yes ma'am. yes ma'am. Yes. Then social factors. What are the social factors? In which social gathering of society we are living with them, we are friendly or not, or we are adopting the things. So how come it relates to business? Friendly and adopting of the things. Ma'am, it can be like this example I related, the kurta and lungi concepts. ma'am. Yes or no? Yes ma'am, will adopt or not. Yes ma'am. And the technological, we have to change ourselves as the change in the technology. Yes? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. Then the components of the business environment, you can easily understand with this diagram. There is input, there is transformation process, then output. जो मैंने image पहले आप लोगों को दिखाई थी कि what is input, what is transportation process, what are outputs. Then the internal environment. Internal environment में वो सारे factors हैं that we discussed earlier. Any one of you can tell me any one factor of internal environment. हमने अभी last slide में discuss किया है. Employee, yes. Then comes the
माइक्रो और मैक्रो, पहले क्या आता है, माइक्रो या मैक्रो? Micro. मैक्रो माइक्रो माइक्रो मैक्रो 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 देन कम्स द Macro, ma'am. माइक्रो। माइक्रो को पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए एक्सप्लेन करना होता है इकोनॉमी में। माइक्रो एनवायरनमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होता है। जस्ट गो टू द बैक स्लाइड। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? Stakeholders, competitors, supplier, intermediaries, consumers. So this is our microenvironment, the regulatory and professional groups, the supplier, the competitors, industry environment, market, customers. Then the macro environment is not controllable by ourselves at all. इसको हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, concept clear till here? Yes, ma'am. ma'am. So how many environment are there in a business environment? 3, ma'am. Let's revise. जितनी slides पढ़ी हैं फटाफट। We have to complete our unit 1. Yes? Micro, Yes? macro, Macro, and internal environment. Internal environment. 3 environments and you are easily aware। अब तो concept समझ में आ गया कि 3 environment के क्या क्या factors हैं। Yes? Internal environment analysis जो हम करते हैं, this is the SWOT analysis diagram. What we do in a business environment. Internal environment analysis: strength, weakness, opportunities, threat. These are the 4 things in a SWOT. The SWOT word, SWOT: the strength, the weakness, the opportunities, the threat. When you have time, just sit down and do the SWOT analysis of yourself. जब आप किसी भी interview के लिए, being a management student, being an MBA, when you will go for an interview or go for the promotion or switching from one organization to any other organization, SWOT analysis, do the SWOT of yours. That what strength you have, what weakness you have, what opportunities you can gather, and what are the threats with you. Yes? Yes, Do ma'am. it. Then you will have the clear concept of SWOT analysis. And always try. Yeah, it's good to identify your weakness, but it's not good to present your weakness. Always use your weakness as your strength. It is said. Okay? Okay, ma'am. Yes. So strength, weakness, opportunities, and threats. These are the 4 things for any business we do. We find what are the strengths of our business, what are the weakness that we are facing, what are the problems, or what are the deficiencies, deficits we have, what opportunities we can gather from the environment, and what are the threats. अगर हमारे पास बहुत टेक्निकल स्टाफ नहीं है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत ही वैसा चेंज करना चाहते हैं, तो इट इज दी वीकनेस। यस और नो? देन वी हैव टू ट्रेन आवर स्टाफ फॉर दैट टेक्नोलॉजी। वी हैव टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मैम ये थ्रेट्स और वीकनेस में क्या अंतर है? क्या अंतर है वही मैं बताने जा रही हूँ। तो हमें उसको, वो हमारी वीकनेस है कि हमारे पास वैसा स्टाफ नहीं है। ठीक है, तो हम अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे टू बी इजिली यूज दैट टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को आराम से यूज करें। जैसे कि जब ये ट्रेंड आया यूज ऑफ कंप्यूटर्स, पहले तो सब कुछ मैनुअल था, कंप्यूटर्स का यूज आया। यस और नो? यस मैम, यस मैम। तो ये वीकनेस थी या एक थ्रेट था? वीकनेस ही मैम, बिकॉज पता नहीं इसके बारे में, कुछ पता नहीं था। तो ये वीकनेस था या थ्रेट था किसी ऑर्गेनाइजेशन? वीकनेस खुद के लिए थी, थ्रेट कंपनी के लिए। हाँ, वीकनेस खुद के लिए थी कि पता नहीं हम कंपनी में एग्जिस्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम पता नहीं सीख पाएंगे कि नहीं। I come through many students or many staff working in organizations, in government organization, who are not able to make a PPT.
So this is their weakness. Right, ma'am. And ये तो उनकी वीकनेस है इंटरनल, बट देयर आर थ्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी वर्किंग को इफेक्ट करेंगे. Right, ma'am. They are presenting कि वो, so what is the summary of SWOT analysis? Capitalize strength, mitigate weakness, exploit opportunities and avoid threats. Avoid threats. Okay? मैम अगर इसको बिजनेस Right, ma'am. Yes, ma'am. मैम इसको अगर बिजनेस की तरह लिया जाए तो मैम कैसे ये हाँ. होगा फिर? अगर हम बिजनेस को लेते हैं तो बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या होगी? एक कोई भी एग्जांपल ले लो बिजनेस का बेटा आप, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो बिजनेस का, तो आप ही बताओ, हम उस एग्जांपल को लेते हैं. मैम जैसे ये इसका बोल रहा मैं ऐसे में कह रहा हूँ familiar with the वीकनेस map और ना? थ्रेट में क्या अंतर पड़ेगा मैम अगर बिजनेस में इसको लिया जाए? हाँ, तो बिजनेस को लोग तो हम उसमें मैम, सोच like- करेंगे ना. मैम लाइक कोका कोला कंपनी, लाइक उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ है. हाँ, उसके जो प्रोडक्ट्स है स्ट्रेंथ है, और उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है? मैम हैकिंग हो गई या लैक ऑफ फंड हो गया, ये हमारी थ्रेट्स होंगी, वीकनेस ये नहीं है. थ्रेट्स, यस. और वीकनेस क्या हो गई? वीकनेस अगर हम साल भर में 1.5 साल तक हमारी एनपीएस बढ़ते जा रही थी, हमारी वीकनेस होगी. अगर हमारा वीकनेस क्या है? अगर हमारा स्टाफ एफिशिएंट नहीं है, अगर हमारा स्टाफ टेक्नोलॉजिकल चेंज या एफिशिएंट स्टाफ नहीं है, प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर रहा है, तो वो हमारे, क्यों हम स्टाफ्स को हायर और फायर करते हैं? क्यों एक स्टाफ को हम कंटिन्यू नहीं करते हैं? कुछ तो आइडेंटिफाई करते हैं ना, वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं ना कि द स्टाफ इज द वीकनेस फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. यस मैम. यस मैम, अदरवाइज उनकी स्ट्रेंथ ही थ्रेट हो जाएगी. और वीकनेस है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और थ्रेट क्या है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं. वी आर लैगिंग बिहाइंड. राइट मैम. जितना चेंज एनवायरनमेंट में हो रहा है, जितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, हम उसको नहीं मीट अप कर पा रहे हैं. द चेंज इन द एनवायरनमेंट इज थ्रेट फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन. ओके मैम. Okay? No. Now, the relationship between organization and environment. What is the exchange of information? Yes. किसी भी organization और environment में exchange of resources and exchange of influence and power. Internal environment के components जो भी थे, वो क्या create करते हैं? Value system, vision, mission and objective, management structure, nature, internal power relationship, human resources and company image. इसी सबसे कंपनी इमेज क्रिएट होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स से. ओके? हाँ. The other factors, the internal environment, company image and brand equity, physical assets and facilities, R&D and technological capabilities, marketing resources and financial factors. These are the other factors that are responsible in the internal environment of the company image, overall company image and brand equity. The guidelines, the standard, the policy, the business principles that are followed. And the external environment, macro environment, demographic, economic, government, legal, political, cultural, technological, global. And in micro, consumer, customer, competitor, organization, the market, the suppliers, anyone else, the other 2 points? Intermediate. Yes. Public. Yes. So, micro environment is also known as task environment or operating environment. And consumer and customer, we have already discussed about this. Who are the competitors? What is the organization? The market, larger than? What are the intermediaries? Public, external environment. These are the factors. I will share my PPT with you all. You can easily go through it. I want to just discuss about the CSR.
the last topic in the unit 1, that is the CSR. You are अब आप सब लोग कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सारे एनवायरमेंट्स का? नो इश्यू? Right, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, so what is CSR? सुना है इस टर्म के बारे में? Corporate social responsibility. Corporate social responsibility. मैंने So what is Ma'am, ये corporate social responsibility? मैम ये जो कंपनी में हम जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उस Why प्रॉफिट का आप कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है? मैम हमारी आवाज आ रही है मैम, पंकज बोल रहा हूँ। Hello? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से जो एनवायरनमेंट है उसी से अपना प्रॉफिट या फिर जो भी बिजनेस ऑपरेट करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस सोसाइटी से हम ले रहे हैं कोई भी चीज उसको वापस कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, हम Correlated सोसाइटी होता से है। कुछ लें तो हम सोसाइटी को वापस दें। यस और नो? जी यस 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 मैम। किसी भी फैक्ट्री के नियर अबाउट में किसी ग्रामीण जगह को डेवलप करना, स्कूल डेवलप करना मैम, किसी अपने नियर अबाउट हॉस्पिटल्स में कोई चीज इक्विपमेंट देना, अगर हम प्रॉफिट में है तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी एक कंपनी के साथ मैम, ऐसा होता है। यस, वेरी गुड। और आप लोग बस एक, दिस इज जस्ट, हम जब अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वी विल जस्ट डिस्कस ओवर दिस फॉर 1 or 2 minutes, जस्ट ब्रिंग सम एग्जांपल कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हाउ दे आर डूइंग दिस CSR। ओके, कितना परसेंट CSR करते हैं? दिस इज योर जस्ट अ simple homework. Now, social responsibility, my screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Responsibility of business can be defined as the obligation and organization management team has toward the interest and हम अगर सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो हम सोसाइटी को कुछ देते हैं। बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम तो उनसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट बेसिकली हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? सो दिस इज द CSR. Conceptually, social responsibility may be taken up to mean intelligent and objective concern for the welfare of the society. This is the basic term. So the 4 dimensions of corporate responsibility are economic, legal, ethical, and voluntary and philanthropic. What is economic? Responsibility to earn profit for owners. ठीक है, corporate responsibility ये हुई ना, social responsibility नहीं, corporate responsibility है ये, है ना? Yes, ma'am, है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लाई विथ लॉज, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें लॉज के साथ चलना चाहिए। डूइंग व्हाट इज राइट, जस्ट एंड फेयर, एथिकल, सही करना है, गलत नहीं करना है। रादर पीपल आर फॉलोइंग मेनी मीन्स, दिस इज जस्ट इन बुक नाउडेज, बट वी शुड बी एथिकली राइट। एंड voluntary and philanthropic, promoting human welfare and goodwill, being a good corporate citizen, contributing to community and quality of life. Okay? हमें अपनी सोसाइटी के लोगों को उनकी क्वालिटी, हम जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और उनको हमें कुछ देना है। सबके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पिरामिड है वो बताता है कि सबको कुछ ना कुछ देना है। शेयर होल्डर्स, कम्युनिटी, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, सबको, और दिया भी जाता है। इफ यू रिलेट विथ हाउ अ बिजनेस इज रन, तो हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, उनको पे करते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स उनको देते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, हम सबके, जैसे शेयर होल्डर्स आर सोर्स ऑफ फंड्स टू अ कंपनी, यू ऑल नो दिस? Yes or no? Who are shareholders? Yes, ma'am. They are source of funds. So it's the duty of the management to see that the financial position of the company is sound and the companies always look for growth. Okay? Yes, So yes, ma'am.
likely should keep the shareholders well informed about the progress and financial position of the company. The assets of the company are purchased with the fund provided by the shareholders. Now, responsibility towards workers. We have responsibility towards everyone, towards supplier, towards creditors, towards the community. The management should not indulge in any practice which is not fair from social point of view. Society expects that the business uses the factors of production